Hello friends, my name is Lokesh Solanki and this is our beautiful सा channel Physics Lover। आज हम बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स सेकंड चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड इन विच वी विल डिस्कस अबाउट प्रिज्म। व्हाट इज अ प्रिज्म? एक प्रिज्म क्या होता है? हाउ टू मेक अ प्रिज्म? प्रिज्म में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? What is the angle of prism? When the ray of light is passing through a prism, then what is the emergent ray? उस कंडीशन में emergent ray होगी वो कैसी जाएगी? Is there any change in the direction of emergent ray, or it move in the direction of incident ray? क्या incident ray और emergent ray दोनों parallel होंगी? So we will discuss all these phenomenon in today's lecture. So first we will discuss about prism, glass prism. पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? ग्लास प्रिज्म के बारे में। What is a glass prism? We know that हम जानते हैं कि when the ray of light is passing through the glass slab, ये क्या है? This is a glass slab, okay? This is a glass slab. तो glass slab में हम क्या कहते हैं कि उसकी जो opposite sides होती हैं they are parallel. In the glass slab the opposite sides are parallel. Means the incident ray, ये है incident ray, refracted ray and emergent ray, ये क्या होती है? पैरेलल होती है या नहीं? यस, द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रेज आर पैरेलल इन ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब। कि जब व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ग्लास स्लैब देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। उस कंडीशन में रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता है, ओके? बट a glass prism is the combination of two triangles and three rectangles. उसकी जो sides होती है उसमें दो triangles होते हैं and one is a rectangle. Means the opposite sides of the glass prism are not parallel. देखें कैसे? यह है एक triangle, ठीक है? And that is the rectangle. एक rectangle ये हुआ, another rectangle and one more rectangle. एक rectangle क्या होगा? base. Okay, so you can easily see in this diagram 1 2 and 3 are the rectangles and 1 and 2 triangles. Means we can easily say that, क्या कह सकते हैं हम कि a prism is a combination of 3 rectangle and 2 triangle. It is combination of 3 rectangles and 2 triangle. ये क्या होता है? 3 rectangles और 2 triangles का combination होता है. It means when the ray of light is passing through the glass prism, it is not parallel to the incident ray. क्या कह सकते हैं हम कि जब when the ray of light is passing through glass prism, जब रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी? ग्लास प्रिज्म से जाएगी। then incident ray
is not parallel to emergent ray, उस कंडीशन में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में क्या होगा, पैरेलल तो नहीं होगी, बट देयर इज सम डेविएशन, देयर इज सम डेविएशन between rays, उससे हम क्या कहेंगे, उस डेविएशन को कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो हमें क्या दिख रहा है कि जो अपोजिट फेसेस हैं प्रिज्म की, दे आर नॉट पैरेलल, अपोजिट फेसेस, ये साइड्स are not parallel to each other. They are making some angle. Is it clear? Means two opposite faces are making some angle, and that angle is known as a angle of prism. एक ये opposite face 1 और 2 दोनों क्या बना रही है, कुछ एंगल बना रही है, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। व्हेन टू अपोजिट साइड्स आर मेकिंग सम एंगल, that angle is known as the angle of prism. That angle is known as angle of prism. Okay, so that is all about glass prism. ये क्या होता है, ग्लास प्रिज्म के बारे में है कि ग्लास प्रिज्म में there are 3 rectangles and the 2 triangles. ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के होते हैं, इट इज नॉट अ इक्वल एंगल। हम कह सकते हैं कि जो एंगल्स हैं इज इट नॉट इक्वल्स, ये हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, वी कैन इजीली मेक डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। ओके, सो मेन पॉइंट इज the incident ray and the emergent ray are not parallel to each other when passing through the glass prism. क्योंकि ग्लास प्रिज्म में क्या हो रहा है, each and every condition its part is decreasing. हम कह सकते हैं इसका जो बेस है, this is the base and this is the sides. तो बेस पर रे ऑफ लाइट क्या होगी, बैंड होगी, एंड जनरली वी विल रिप्रेजेंट प्रिज्म को हम ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, वी विल रिप्रेजेंट अ प्रिज्म विथ ट्राइंगल। ओके, सो कॉपी पेन निकाल लें एंड राइट डाउन प्रॉपरली, इसे अच्छे से लिख लें। चलें, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट through a glass prism. Refraction of light through a glass prism. ओके, तो देखें हम, सो दिस इज आवर प्रिज्म। ओके, दिस इज अ प्रिज्म। ये क्या है, हमारा प्रिज्म। ओके, A, B and C.
We know that when the two sides are at any some angle, जब दो साइड्स मिलकर कुछ एंगल बनाती है तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म के एंगल्स हैं। ओके, ये इक्वल नहीं होंगे। इफ यू कंसीडर दे आर इक्वल देन दैट इज इक्वल। इक्विलैटरल प्रिज्म में ये इक्वल होंगे। ओके, दिस इज अ इंसिडेंट रे। मान लेते हैं ये OP। OP इज द इंसिडेंट रे। क्या है ये? OP इंसिडेंट रे। ओके, OP इज इंसिडेंट रे। सो इस प्रिज्म का एक नॉर्मल होगा या नहीं? दिस इज द नॉर्मल ऑफ द प्रिज्म। दिस इज द नॉर्मल ऑफ द प्रिज्म। एंड यू नो दैट नॉर्मल और प्रिज्म के बीच एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो एंगल OPN, एंगल OPN ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यू नो दैट रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द एयर थ्रू द मीडियम। ये कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास प्रिज्म में जा रही है। उस कंडीशन में ये क्या होंगी? बैंड होगी। कहां पर? टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन देयर इज नो प्रिज्म तो हम कहते हैं कि रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती। ठीक है, जब प्रिज्म नहीं होता तो रे ऑफ लाइट कैसे जाती? स्ट्रेट लाइन में। बट बिकॉज देयर इज अ प्रिज्म तो ये क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाई? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये P, ये हो गया Q। तो हम कह सकते हैं QPN डैश, QPN डैश इज इक्वल टू R। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर? ओके, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर भी तो नॉर्मल आएगा या नहीं? सेकेंड नॉर्मल N1 डैश, ठीक है, N1 डैश। एंड यू नो दैट दिस इज R तो दिस इज आल्सो R, ये भी R ही होगा। मीडियम इज सेम, देयर इज नो चेंज। And when the medium is same, there is no change in the angle. When the ray is passing through glass to air, जब रे कहाँ से कहाँ जाएगी? ग्लास से एयर में जाएगी, प्रिज्म से एयर में जाएगी, वैक्यूम में जाएगी। It away from the normal, ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ओके, एंड दैट एंगल इज नोन एज, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंट। मीन्स N1QR इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके, so when the ray of light is passing through, first it is coming from the air to prism, bend towards the normal, then it passing from prism to air away from the normal। तो ये क्या हो रही है उस कंडीशन में? they are making emergent angle and we can easily see incident ray and emergent ray are not parallel to each other. When we increase incident ray in forward direction and emergent ray in backward direction, जब हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें यहाँ पर एक एंगल मिलेगा। we will get an angle at a point D, जिसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर ये जो एंगल मिल रहा है जिसे डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन।
ठीक है, इससे हम क्या कहेंगे, ओपी पिडेश। पिडेश डी आर, पिडेश डी आर, it is the angle of deviation. Okay, what is the angle of deviation? The angle made between incident ray and emergent ray. Incident ray and emergent ray is known as angle of deviation. Okay, so whenever the ray of light is passing through a prism, so it gets deflected. ये क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, डेविएट हो जाती है। और जो डेविएशन होता है, इट इज डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो डेविएशन है किस पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ डेविएशन पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करेगा। ओके, एंड द एंगल व्हिच इज मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों रेस के बीच जो एंगल बनेगा, ये वाला, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ओके, सो दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जो जब भी रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, ग्लास प्रिज्म से जाएगी, सो इट डेविएटेड, ये क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस, ये क्या हो जाती है, बेस पर बेंड हो जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस, या इट बेंड टुवर्ड्स द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म। देखो यहाँ पर थिनर पार्ट है, थिनर से थिकर होता जा रहा है, रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, थिकर पार्ट पे बेंड हो रही है और फिर यहाँ से इमर्जेंट हो रही है। ओके, एन एंगल I एंड एंगल E इज नॉट इक्वल। एंगल I और एंगल E क्या होंगे, इक्वल नहीं होते हैं। ओके, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर द एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये प्रिज्म के एंगल होते हैं। ठीक है, that is all about the refraction of light through a glass prism. Glass prism is a combination of 3 rectangle and 2 triangles. Okay, so thank you for watching this video. If you like this video, then subscribe to our channel Physics Lover. पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। Best of luck.